मेरे पास स्टाफ है सारा वो मेरी जिम्मेवारी है। नहीं अब मुझे मैं आपको भी नहीं जानती कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। अगर मेरे को पेरेंट्स आके अंदर जिम्मेवारी लेते, मैं ना आपको जानती हूँ ना आपको जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती मैं कैसे 100 पेरेंट्स आया सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्कूल के प्रति कहते हैं कि अब नहीं है तो स्कूल को भी सेफ रखना मेरी ड्यूटी है ना। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਨੂਮੰਤ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪੇ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲਦੀ ਦੇਖ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। K9 ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇष रिपोर्ट। जिम्मेवारी है। नहीं अब मुझे मैं आपको भी नहीं जानती कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। अगर मेरे को पेरेंट्स आके अंदर जिम्मेवारी लेते, मैं ना आपको जानती हूँ ना आपको जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती मैं कैसे 100 पेरेंट्स आया सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्कूल के प्रति कहते हैं कि अब नहीं है तो स्कूल को भी सेफ रखना मेरी ड्यूटी है ना। ਕੁਝ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ I ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। जब मैं आपको जानती ही नहीं हूँ मैं कैसे ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਏਸੀ 'ਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैंने तो नहीं बिठाया। ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੋ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਇਹ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਯੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਚਾਰਜ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੇਣੂ ਜੋਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ 3rd ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस, ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, 10-10, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ।
और सानू लगातार किया जा रहा है कि एनुअल चार्जेस दो नहीं तो बच्चे ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਤਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 50% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੀਸ ਲੈਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਸ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਔਰ ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਸ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 50% ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਣ। ਵੈਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੈਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पहले तो मैं ये जो धरना लगाया है मैं इसके हक में ही नहीं हूँ। अगर स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफिस पूरा रिस्पेक्टफुली इज़्ज़त के साथ उनकी डिमांड्स को सुनने के लिए तैयार है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, जो स्कूल की मर्यादा है, जो स्कूल की लिमिटेशंस हैं, वहाँ तक अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो मेरे को लगता है कि धरने का मकसद ही कोई नहीं था। धरना होता है प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट किस चीज़ का? जब स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम आपकी सारी डिमांड्स को सुनने के लिए तैयार भी हैं और साथ ही में जहाँ तक स्कूल की कैपेसिटी होगी, जहाँ तक हम अपने फाइनेंशियल बजट को लुक आफ्टर करते हुए जहाँ तक हम एडजस्ट कर सकते हैं हम करने को तैयार हैं। तो धरने का यह मकसद ही नहीं था। लेकिन आज लग गया ना धरना लग गया तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि उसमें मेरे पेरेंट्स कम हैं, उसमें सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं, कुछ अनआइडेंटिफाइड और अनफेमिलियर चेहरे हैं जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ, जो मेरे स्कूल के पेरेंट्स भी नहीं हैं। तो आप बताइए कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, क्या मैं उन लोगों को आंसरेबल हूँ फीसों के लिए या एनुअल चार्जेस के लिए? लेकिन वो शायद नहीं। पत्थर आपको देके गए हैं, नहीं, डिमांड थी एक पेरेंट्स की एक डिमांड आई कुछ दिन पहले, एक ग्रुप पेरेंट्स का आया, जितनी मुझे परमिशन थी मैनेजमेंट की तरफ से, जो मेरी पावर्स में था, दैट मच डिस्काउंट एंड वेव ऑफ आई हैव ऑलरेडी ऑफर्ड। उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक एप्लीकेशन दीजिए, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट ग्रुप आ गया। नेक्स्ट ग्रुप ने सीधा ही ये कहा, अब अगर मैं ज़िद पे अड़ जाऊँ, मैं बिल्कुल पूरा लेना है, पेरेंट्स कहें हमें कुछ नहीं देना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कुछ मुझे रिलैक्सेशन देनी पड़ेंगी और कुछ रिलैक्सेशंस पेरेंट्स को भी अपने माइंड में लेके चलनी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे ही इनके साथ बातचीत हुई, बातचीत करने के 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद सोशल नेटवर्क पे एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि 12 तारीख को हनुमत स्कूल में धरना। तो इन्होंने मुझे मैनेजमेंट के साथ बात करने का मौका कहाँ दिया? अगर मौका दिया होता, मेरे को पीस ऑफ माइंड के साथ, एक पीसफुली माइंड के साथ मैं मैनेजमेंट के साथ बैठती, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करती, उन्हें एहसास कराती, कुछ डिसीज़न लिया जाता। डिसीज़न देने के लिए समय और माहौल देना ज़रूरी है। डिमांड्स क्या हैं? डिमांड्स, अब उनकी डिमांड्स आई थिंक सो, मेरे को आप सभी लोग बाहर ही थे, उनकी डिमांड्स थी कि जो उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है बच्चों की, जो हम मंथली ट्यूशन फ़ीस देते हैं, उसे 50% वेव ऑफ किया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑल्सो अ टीम ऑफ मोर देन 70 टीचर्स एट द बैक विच आर टू बी सपोर्टेड विद द फाइनेंस। उनकी भी कुछ फाइनेंशियल नीड्स हैं। उसके बाद एनुअल चार्जेस की बात है, एनुअल चार्जेस पूरा वेव ऑफ किया जाए। तीसरी डिमांड थी ट्रांसपोर्टेशन को आधा किया जाए। बाकी मैंने उन्हें यही रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना मेमोरेंडम हमें दे दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट इसके ऊपर बैठेगी, चर्चा करेगी, डिस्कशन होगी, जो रिज़ल्ट होगा, जितनी भी तारीख 17, 18 हम फाइनल कर लेते हैं, तब ये फैसला दे दिया जाएगा। लेकिन एनुअल चार्जेस वो कह रहे हैं 50% कर दिया जाए, लेकिन वो भी आप देखिए, एनुअल चार्जेस की बात ऐसे है मिस्टर मनीष, लास्ट ईयर स्कूल वाज ओपन इन द मंथ ऑफ नवंबर में स्कूल खुल गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने स्कूल चला।
इवन कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी कि जितनी पिछले साल की फ़ीस है उसमें कुछ डिस्काउंट करके बाकी पैसे को 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके आप पेरेंट्स से अगस्त की डेट तक ले सकते हैं। हमने लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने बड़ा ग्रेशियसली बड़े दिल के साथ वो पैसा हमने मांगा ही नहीं पेरेंट्स से। वी डिडंट डिमांड एनीथिंग इन द नेम ऑफ एनुअल चार्जेस। सिर्फ ट्यूशन फ़ीस, मंथली ट्यूशन फ़ीस के अलावा स्कूल ने पिछले साल कुछ भी चार्ज नहीं किया। इस साल आपने भी देखी होंगी गाइडलाइंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्लियर किया कि इस साल जो पिछले साल का डिसीजन था वो 2021-22 के स्टेटस को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब पेरेंट्स को जब स्कूल कहता है, जैसे स्कूल कहता है वो पेरेंट्स को फीसें देनी पड़ेंगी। जब अप्रैल में स्कूल खुला तो वी हैड डिस्कशंस विद द पेरेंट्स, उनसे बात हुई, मैडम अभी तो स्कूल खुला नहीं, अभी हम एनुअल चार्जेस नहीं होंगे। अब नाउ द स्कूल इज़ ओपन ऑन 2 अगस्त एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। स्कूल खोला गया, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया गया कि जो पेरेंट्स स्कूल भेजना चाहते हैं बच्चों को ऑफलाइन में, तो वो काइंडली अपने एनुअल चार्जेस डिपॉजिट करवा दें। डिपॉजिट करवाने का एक सर्कुलर गया, उसके बाद पेरेंट्स का एक ग्रुप हमारे पास इकट्ठा, जैसे मैंने अपने पहले ही वर्ड्स में कहा कि पहला ग्रुप हमारे पास फ्राइडे आया, उसके बाद ये ग्रुप परसों आया। तो ग्रुप्स इकट्ठे होके आ रहे हैं। मुझे सोचने का मौका देंगे, बात करने का मौका देंगे, तभी मैं बात कर पाऊँगी। बात होने के 15 मिनट बाद ही धरने की न्यूज़ फ्लैश हो जाती है पूरे सोशल मीडिया पे, और हमारे बच्चों के बीच में भी वो न्यूज़ फ्लैश हो रही है। बच्चे आपस में क्लास के ग्रुपों में बात कर रहे हैं कि क्या हम उस धरने पे जाएं। मेरी पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि बच्चों का भविष्य ख़राब ना करें, बच्चों को इन चीज़ों से, ऐसी पॉलिटिकल गतिविधियों से दूर रखें, क्योंकि मेरे देश की यही वेल्थ है। यूथ इज़ द वेल्थ ऑफ माई नेशन। इसे ना ख़राब करें। जो भी मुद्दा है हम यहाँ पर बैठकर बात करने को उसके ऊपर तैयार हैं। मैडम मापिया वालों 17 तरीक ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਨਾ लावांगे जी। और उसके लिए देखिए, अब मैंने ऑलरेडी उन्हें बाहर कह दिया, जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे, कि आप अपना मेमोरेंडम मुझे प्रोड्यूस कीजिए। उसके बाद ये डिसीजन, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल जो भी हमने डिसीजन लेने हैं, दैट इज़ टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर बोर्ड ऑफ द स्कूल। स्कूल की मीटिंग बैठेगी, मैनेजमेंट बैठेगी, उसमें ये डिसीजन ले सकती हूँ। मैम आपका जो स्टाफ है उनको भी सैलरी नहीं दी जा रही? हाँ जी, स्टाफ को भी सैलरी पूरी नहीं दी जा रही या ज़्यादातर नहीं दी गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादातर नहीं दी गई। हाँ, उसमें कुछ डिडक्शन ज़रूर की गई हैं। आपको भी पता है कि स्कूल्स आर ऑल्सो अंडरगोइंग अ वेरी क्रूशल स्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, जिसके मद्देनजर आपके सामने ये मैं लिस्ट रख सकती हूँ। ये मैंने अभी अपने जो भी कुछ इनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, ये आप देखिए कि मेरे पास 48 लाख की इस साल की बैलेंस अमाउंट है। आप चेक कर सकते हैं, किसी पेरेंट्स का 5000 है, किसी का 15 है, किसी का 20 भी होगा। आप इसे भी ज़रूर फ्लैश करिए कि स्कूल का अभी तक इस साल का सितंबर का 48 लाख स्कूल कैसे गुजारा करेगा। अगर 48 लाख आज की अमाउंट डेट में पेंडिंग पड़ा हुआ, स्कूल किस तरीके से सैलरीज मैनेज करेगा, स्कूल अपने रनिंग एक्सपेंडिचर्स किस तरीके से कवर करेगा। ये बैलेंस 2019 का है। 2019 में ये जो पैसे हमारे डेड हो गए, बैड डेट्स, जो हम रिकवरी नहीं कर पाए, उसके बाद स्टडी नहीं करवाई, टीचर ने स्टडी करवाई राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। माय डियर ब्रदर, उसका सिर्फ यही जवाब है कि जब स्कूल के पास फाइनेंसेस ही नहीं होंगे, अपनी जेब में अगर पैसा नहीं है ना, घर में अगर बच्चा भी अपना पैसा मांगता तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो ये थोड़ी सी हमने स्टाफ की सपोर्ट के साथ ये कुछ एडजस्टमेंट की थी। दिस वाज ऑल अबाउट। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट कोई नहीं करते। बाकी स्कूल हैं, और बाकी स्कूल जो अब CBSE हैं उन्होंने 50% एनुअल कराया। जी एग्जैक्टली। तो आपका एनुअल चार्जेस जो है वो डबल है। जिन्होंने 50% लास्ट ईयर किया, जिस भी ABCD किसी भी नेबरिंग में, अभी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिस भी किसी नेबरिंग स्कूल ने किया, उन्होंने लास्ट टाइम 50% किया। लास्ट टाइम 50%। अब आई विल नॉट कोट द नेम ऑफ द स्कूल, राइट, उसमें 50% किया। हम भी, अब मुझे मौका तो दे मैनेजमेंट से बात करने का। 25 मैंने पहले से ही अनाउंस कर दिया था कि आई विल बी गोइंग टू पुट फॉरवर्ड माई प्रपोजल बिफोर मैनेजमेंट विल बी रेडी टू डू दैट। लेकिन अब आगे के लिए मुझे मौका देंगे तो मैं बात कर पाऊंगी। अगर मौका ही नहीं देंगे, फीसें माफ़ कर दें, इधर एक तरफ आप सैलरी की पूरी बात करें, अगर फीसें भी हम आधी कर देंगे तो स्टाफ की सैलरीज कहाँ से कंपनसेट हो पाएंगी। आप इन बैलेंसेस को तो एक बार नज़र तो डालिए कि कितनी हैवी अमाउंट्स हैं, कितने लॉसेस में है स्कूल्स। जो वीक यूनिट है वो चल ही नहीं पाए। स्कूल है, पेरेंट्स का है, बच्चों से स्कूल चलता है। पेरेंट्स को अगर हम कुछ उनकी जायज़ डिमांडों को सुनने के लिए तैयार हैं तो उन्हें भी तो स्कूल के स्टेटस को, स्कूल उनसे है। ये बैलेंस मैम बता रहे हो आप, ये ट्यूशन फीस है? ये सिर्फ ट्यूशन फीस, सिर्फ ओनली ट्यूशन फीस। इट इज़ नॉट अ बैलेंस ऑफ एनुअल चार्ज इन ऑल। ये सिर्फ ट्यूशन फीस का बैलेंस है। ये 2021 की जो लास्ट ईयर के जो बैलेंस है, जो हमारे बैड डेट्स में गए, जो रिकवरी नहीं हो पाई, लेकिन इनमें से कुछ बच्चे फिर भी हमने एडजस्ट करके उनको कुछ डिस्काउंट्स देके यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ 2021-22 में।